everyone, this is Preeti Ghosh with another educational video of class 6 chapter 5 separation of substances. In this video we are going to discuss the exercise question of this chapter. If you haven't seen the explanation of this chapter, links are given in the description box. And if you are new to my channel, do subscribe and press the bell icon to get latest updates. Also, you can follow me on my Facebook page. The link is given in the description box. So, without further ado, let's start with today's class. Section A, very short answer questions. In that, question number 1 asked, by what name are substances present in a mixture called? जो substances mixtures में present होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? Those are called components. Question number 2, give one example of heterogeneous mixture. हमें एक heterogeneous mixture का example देना है. Heterogeneous mixtures कौन से होते हैं? जो कि एक साथ mix up properly नहीं हो पाते, उनका जो proportion होता है वो same नहीं होता throughout the mixture. तो उसका वैसा एक example क्या है? Sugar and sand. Next question, what happens when vapor of a liquid is cooled? जब किसी वेपर को लिक्विड के किसी वेपर को कूल किया जाता है तो उससे क्या होता है? That situation is called condensation. Okay. Next, do oil and water form a homogeneous mixture? अगर वाटर और ऑयल को मिक्स कर दिया जाए तो क्या वो एक होमोजीनियस मिक्सचर तैयार करेगा? होमोजीनियस मिक्सचर्स कौन से? जिसके अंदर हमें जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनका सेपरेटली हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. दे ऑल आर मिक्सड अप वेरी प्रॉपरली इन प्रॉपर प्रोपोर्शन थ्रू आउट द मिक्सचर. तो अगर हम ऑयल और वाटर को मिक्स करते हैं तो दे विल फॉर्म अ सेपरेट लेयर. सो दैट इज नॉट अ होमोजीनियस मिक्सचर. तो आंसर विल बी नो, दे डू नॉट फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर. ठीक है. नेक्स्ट इज name the term that describes the maximum mass of a solute that can be dissolved in 100 gram of solvent. तो हमने ये एक टर्म के डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अगर हम 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं तो उस फिनोमिना को, उस चीज़ को हम कहेंगे solubility. So the term that will describe this phenomena is called solubility. Clear? Now next, section B, short answer questions. In that, question number 1 asked, describe the process called loading. Loading क्या है? तो loading, during sedimentation the heavier coarse particles settle down. Fine particles of clay settle down very slowly. The fine particles can be made to settle faster by dissolving a small quantity of alum in muddy water. This method is called loading. तो जैसा कि देख सकते हैं अगर muddy water का हम लेंगे तो उसके अंदर जो heavy particles है वो sedimentation में जो होता है that is वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे. लेकिन उसके जो फाइन पार्टिकल्स हैं, जो लाइट वेटेड है फाइन पार्टिकल्स हैं, वो क्या होगा? वो सेटल डाउन होने में थोड़ा टाइम लगाएगा. बट दिस सेटलिंग डाउन ऑफ फाइन पार्टिकल कुड बी मेड फास्टर. उनको स्पीड अप किया जा सकता है. कैसे? बाय एडिंग अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एलम इन दिस मडी वाटर. तो क्या होगा? ये जो फाइनर पार्टिकल्स है वो जल्दी से सेटल डाउन हो जाएंगे बॉटम में. ठीक है. So this is the whole diagram of loading of finer clay particles in muddy water. When alum is added to muddy water, the finer particles get loaded with alum particles and form larger aggregates. This makes settle down faster. तो वो जो settling down का जो process है जो कि बहुत speed में हो जाता है, this is because जब हम alum का वो piece add कर रहे हैं तो बाकी जो fine particles है वो इसके साथ combine होके और भी बड़ा form करते हैं, जिससे कि जो fine particles है वो जल्दी नीचे aggregate होके वहाँ पे settle down हो जाते हैं. ठीक है. So this is how it can be made faster and this whole phenomena is called loading. Clear? Question number 2,
हाउ मच सॉलिड सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड इन सर्टेन फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। ये हमने थोड़ी देर पहले वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में भी पढ़ा था। तो आंसर क्या है? The limiting amount of any substance that can be dissolved in any solvent is described in terms of solubility। उसको किस टर्म में डिस्क्राइब किया जाता है? in terms of solubility। तो solubility क्या है? The solubility is defined as the maximum mass of solute that can be dissolved in 100 gram of solvent at any given temperature। तो सॉल्युबिलिटी वो टर्म है जो कि बताता है कि मैक्सिमम मास ऑफ सॉल्यूट जो कि हम 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉमन सॉल्ट जो होता है उसका सॉल्युबिलिटी क्या है? 36 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट कैन बी एडेड टू 100 ग्राम ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। मतलब 36 ग्राम तक सॉल्ट ही सिर्फ डिसॉल्व होगा 100 ग्राम ऑफ वाटर में अगर हम उसको रूम टेम्परेचर में रखते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द मेथड्स एम्प्लॉयड ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन ऑफ एन इम्प्योर सैंपल ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो अब क्या पता है कि जो प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर है उसके अंदर एक से ज़्यादा मेथड यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से मेथड्स हैं जो कि इम्प्योर से प्योर सॉल्ट कन्वर्ट करने में यूज़ हुए हैं? कॉमन सॉल्ट इज, आंसर क्या है? कॉमन सॉल्ट इज प्योरिफाइड बाय द मेथड ऑफ इवापोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो दो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं उसके अंदर, एक तो पहला एवापोरेशन और एक मेथड यूज़ हो जाता है उसमें क्रिस्टलाइजेशन, जहाँ पे हम उस सॉल्ट क्रिस्टल्स को दोबारा गेन किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू फिश इन शैलो पॉन्ड डाई ड्यूरिंग समर? शैलो पॉन्ड्स में फिश जो होते हैं समर के टाइम पे क्यों यूजुअली मर जाते हैं? आंसर क्या है? फिश इन शैलो पॉन्ड्स डाई ड्यूरिंग समर बिकॉज the pond water gets heated in summer. As a result, the amount of oxygen dissolved in water decreases because the solubility of gases decreases with the rise in temperature. This results in the death of fish. तो जो फिश शैलो पॉन्ड्स में रहते हैं समर के टाइम पे क्या होता है? वो जो पॉन्ड का पानी होता है दैट स्टार्टिंग हीटिंग अप। अब हीट अप होने से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? वाटर में जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वो सॉल्युबिलिटी भी कम होती रहती है। मतलब वो गैसेस उन वाटर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। अब अगर समर के टाइम पे वो पॉन्ड का वाटर हीट अप हो रहा है तो उसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन भी दे टेंड टू एस्केप आउट, वो भी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जो वहाँ पे रह रहे फिश हैं उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता एंड दे डाई ड्यूरिंग समर्स। क्लियर? Next, question number 5. What is meant by aqueous solution? How does the solubility of solid changes with a rise in temperature? तो aqueous solution किसको कहते हैं? The solution of a substance in water is known as its aqueous solution। किसी भी चीज़ को अगर हम वाटर में सोल्यूबल करते हैं, वाटर के साथ उसका सोल्यूशन तैयार करते हैं, तो उस सोल्यूशन को हम कहेंगे aqueous solution। और वो किसी सॉलिड का जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होता है? जनरली द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट्स इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। मतलब जैसे जैसा टेम्परेचर बढ़ेगा सॉलिड सॉल्यूट्स की, मतलब सॉलिड जो सब्सटेंसेस है जिसको हमने किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है उसकी जो सॉल्युबिलिटी है, मिक्स होने की कैपेबिलिटी है, वो भी टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ती जाएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट moving on to section C, asking long answer type questions. Question number 1, define heterogeneous and homogeneous mixture, give one example। तो पहले हम देखते हैं heterogeneous mixture किसे कहते हैं? Mixture in which particles of substances present can be seen are called heterogeneous। Example क्या है? Mixture of sand and sugar। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर है जहाँ पे उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसको हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि सैंड और शुगर। ठीक है, नेक्स्ट इज होमोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर्स हैं इन विच पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंसेस प्रेजेंट
कैन नॉट बी सीन आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसा मिक्सचर जिसके जो पार्टिकल्स हैं वो इंडिविजुअली आइडेंटिफाई नहीं हो सकते, वैसे मिक्सचर्स को कहेंगे होमोजीनियस। एग्जाम्पल क्या है? वाटर और शुगर का जो मिक्सचर होता है, क्योंकि शुगर पूरी तरह से वाटर में मिक्सअप हो जाता है, वी कैन नॉट फाइंड आउट वेयर इज द शुगर। ठीक है, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। क्लियर? Question number 2, describe sedimentation and decantation and what kind of mixtures can be separated by decantation. ठीक है, तो sedimentation decantation क्या है? The process of settling down of heavier insoluble particles in a mixture of water and insoluble substance is called sedimentation. जिस प्रोसेस के थ्रू जो हेवी पार्टिकल्स प्रेजेंट है किसी वाटर के साथ उसके इनसॉल्युबल पार्टिकल्स का जो एक मिक्सचर है उसमें से जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स का जो सेटलिंग डाउन का प्रोसेस है उसे कहेंगे सेडिमेंटेशन। और द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द क्लियर लिक्विड आफ्टर सेडिमेंटेशन विदाउट डिस्टर्बिंग द इनसॉल्युबल हेवी पार्टिकल इज कॉल्ड डिकेंटेशन। अब जो क्लियर वाटर ऊपर मिल चुका है हमें एंड जो बॉटम में जो इसके हेवी पार्टिकल सेटल डाउन हो चुके हैं, तो ऊपर से जिसको क्लियर वाटर को किसी और जगह पे ट्रांसफर करना विदाउट डिस्टर्बिंग बॉटम पार्टिकल्स इज नोन एज डिकेंटेशन। ठीक है, ये है इमेज where you can find out how this process of sedimentation and decantation together being used to separate insoluble substances from the mixture. ठीक है, तो इस मेथड को कहाँ पे यूज किया जाता है? This method of separation is used for a mixture consisting of a insoluble solid and liquid. जिस किसी भी मिक्सचर में एक insoluble solid है और दूसरा एक लिक्विड है, उन सभी सब्सटेंसेस और उन सभी मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए ये वाली टेक्निक या ये वाली मेथड यूज होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मेंट बाय अ पेयर ऑफ मिसिबल लिक्विड्स, गिव वन एग्जांपल ऑफ सच अ पेयर। तो मिसिबल लिक्विड्स क्या किसे कहते हैं? अ लिक्विड सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन वाटर और मिक्सेस विद वाटर कंप्लीटली इन ऑल प्रोपोर्शन as is said to be miscible with water। ऐसा कोई लिक्विड जो कि वाटर के साथ completely मिक्स हो जा रहा है without forming any different layers are called miscible with liquid, miscible with water। एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि एल्कोहल है, एल्कोहल इज miscible with water, therefore alcohol and water जो है that is a pair of miscible liquids। Clear? Now next you have to draw a flowchart diagram describing separation of constituents of mixture containing sand and common salt। sand and common salt का एक मिक्सचर दे दिया गया है, तो उसको फ्लो चार्ट से हमें डिस्क्राइब करना है कैसे हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट। मिक्सचर है हमारा सॉल्ट और सैंड का। अब उसके बाद हमें क्या करना है? उसको डिसॉल्व करना है, डिसॉल्व इन वाटर, कीप द डिसॉल्व मिक्सचर अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। उसको कुछ देर तक बिना डिस्टर्ब किए रख देना है। उससे क्या होगा? क्लियर सुपरनेटेड लिक्विड एक जगह हो जाएगा और जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे। सुपरनेटेड कौन से होते हैं? जो ऊपर का जो क्लियर वाटर मिलता है हमें, क्लियर सोल्यूशन मिलता है जिसके अंदर वो हेवी सैंड पार्टिकल्स विल नॉट बी देयर, दैट इज कॉल्ड सुपरनेटेड सोल्यूशन। तो जो सैंड पार्टिकल्स हमें मिल गए उसको हम ट्रांसफर द सैंड पार्टिकल्स टू फिल्टर पेपर कोन। और इसको हम क्या करेंगे? पहले हम इस जो क्लियर सुपरनेटेड जो हमें लिक्विड मिला है उसको हम फिल्टर करेंगे। ठीक है, अब अगर हम फिल्टर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक रेसिड्यू मिलेगा, एक फिल्टरेट मिलेगा। तो रेसिड्यू में एक्चुअली क्या होगा? जो कि हमें फिल्टर पेपर के कोन पे अभी रखा था, जो उसके सैंड पार्टिकल्स थे, दोज विल बी ओवर द फिल्टर कोन। और जो बाकी जो हमारा फिल्टरेट है वो हमें, वो जो क्लियर वाटर था वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर हम रेसिड्यू को, मतलब कि जो हमारा कोन के ऊपर जो उसके सेटल डाउन सैंड पार्टिकल्स रह गए हैं उसको ड्राई अप कर देंगे तो हमें ड्राई सैंड मिल जाएगा। और जो हमारा फिल्टरेट था वो वाला वाटर जिसके अंदर अभी तक सॉल्ट और वाटर बचा है, सिर्फ वो वाला सुपरनेटेड जो सोल्यूशन है हमारा, उसको अगर हम हीट करके
एवापोरेट करेंगे, एवापोरेशन की प्रोसेस के थ्रू जाएंगे, तो हमें वहाँ से अपना कॉमन सॉल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया, हमने पहले सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन मेथड यूज़ किया, उसके बाद हमने फिल्टरेशन मेथड यूज़ किया, एंड फाइनली वी यूज्ड अ मेथड कॉल्ड इवेपोरेशन टू गेट द सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉल्ट एंड sand. Clear? Now question number 5 asks, define solubility of solid substance in water. How does the solubility of common salt in water change with a rise in water? ठीक है, तो ये वही है जो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि solubility का definition कि the maximum mass of solute that can be dissolved in 100 gram of solvent at any specific temperature is called solubility. और solubility of sugar, solubility of जो sand common salt का जो पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है कि solubility of common salt का कैसे उसका solubility change होगा in water with rise of temperature. तो common salt is nothing but a सॉलिड सॉल्यूट. ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, सॉलिड सॉल्यूट का जो सॉलिबिलिटी है दैट विल इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर. तो सिमिलरली कॉमन सॉल्ट इन वाटर विल ऑल्सो इंक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर. क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू सेक्शन डी, आस्किंग टेक द ऑड वन आउट, गिविंग आउट द रीजंस. फर्स्ट वाला जो है उसके अंदर पूछा गया है डस्ट इन एयर सोल्यूशन of salt in water, cold drinks and air that is pure air. ठीक है, तो इसमें से dust in air is the odd one out because others are the homogeneous mixtures. ठीक है, next जो है वो sedimentation, evaporation, condensation और dissolution. इसमें से condensation जो है that is the odd one out because others are method used for separating the mixture of sand and salt or sand, sugar and others are used to separate the mixture of sugar and sand or salt and sand. ठीक है, next is filtrate, filter paper, residue, sugar solution and suspension. तो ये बहुत ही क्लियर है, इसमें से शुगर सोल्यूशन होगा क्योंकि बाकी सब जो है फिल्टरेट, फिल्टर पेपर, रेसिड्यू या सस्पेंशन, बाकी सब जो है दैट इज रिलेटेड टू द मेथड कॉल्ड फिल्ट्रेशन. ठीक है, नेक्स्ट इज सोल्यूबल, एक्वस सोल्यूशन, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. तो ऑब्वियसली हेट्रोजीनियस होगा क्योंकि बाकी सब जो है दोज आर होमोजीनियस मिक्सचर्स. ठीक है, नेक्स्ट आस्किंग हियर इज फिफ्थ वन, होमोजीनियस मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस या हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स. वेरी ऑब्वियस इट विल बी हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स बिकॉज अदर्स आर वेरी मच होमोजीनियस मिक्सचर्स. ठीक है, सो दिस वाज ऑल दी टिक द ऑड वन आउट क्वेश्चंस गिविंग देयर रीजंस. क्लियर? नेक्स्ट मूविंग ऑन टू अ फाइनल सेक्शन दैट इज डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. अब पहला क्वेश्चन क्या है, कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर किसे कहते हैं. द वेरियस सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट्स. एग्जाम्पल क्या है कि इन अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड, सैंड और शुगर जो है दे विल बी कॉल्ड एज देयर कंपोनेंट्स. ठीक है, ईच कॉम्पोनेंट ऑफ अ मिक्सचर रिटेन इट्स प्रॉपर्टी. मिक्सचर्स के जो कॉम्पोनेंट्स है दे विल रिटेन देयर प्रॉपर्टी एज इन केस ऑफ सैंड एंड शुगर. नाउ नेक्स्ट आस्किंग हियर इज थ्रेशिंग. थ्रेशिंग एक मेथड है, उस मेथड के बारे में हमें बताना है कि वो क्या मेथड है. एक्चुअली वी हैव टू डिफाइन दैट. तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम सन ड्राइड स्टॉक्स इज कॉल्ड थ्रेशिंग. Now in this process क्या किया जाता है, स्टॉक्स को they were beaten against any hard surface to free the grains. उनको किसी भी हार्ड सब्सटेंस पे मार के उसके जो ग्रेन्स है those are being freed. तो that process is called threshing. नेक्स्ट इज लोडिंग, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि सेडिमेंटेशन का जो प्रोसेस है जहाँ पे हेवियर जो कोर्स पार्टिकल्स है वो जल्दी से सेटल डाउन हो जाते हैं लेकिन फाइनर पार्टिकल्स स्लोली होते हैं. उन फाइन पार्टिकल्स को अगर हम सेटल डाउन करवाना चाहते हैं फास्टर रेट में तो हम क्या करेंगे, एक एलम के पीस को उस मडी वाटर के सोल्यूशन में ऐड कर देंगे. तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड लोडिंग. So during sedimentation of muddy water, the heavier coarse particles settle down quickly. Fine particles of sand settle down very slowly. The fine particles can be made to settle faster by dissolving a
small quantity of alum in muddy water. Now this method is called loading. Clear? नेक्स्ट सैचुरेटेड सोल्यूशन किसे कहते हैं? एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर और सोल्यूट उस गिवन टेम्परेचर में ऐड नहीं हो सकता. सो टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन, अ सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सोल्यूशन. क्लियर? नेक्स्ट इज फिफ्थ वन, आस्किंग सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं? सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन हमने अब तक इस पूरे एक्सरसाइज में एटलीस्ट 3 बार तो हमने पढ़ ही लिया है. तो वी शुड ऑल्सो अगेन आई एम टेलिंग यू द definition for that. That is the maximum mass of solute that can be dissolved in 100 gram of solvent at any specific temperature is called the solubility. Example, sugar का room temperature में solubility क्या है? 204 gram in per 100 gram of water. ठीक है. You can also write to that of salt का solubility भी लिख सकते हो जो हमने आगे पहले पढ़ चुके हैं, या फिर तुम ये शुगर का भी लिख सकते हो. दैट्स योर विश. ठीक है. सो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज. इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अनदर चैप्टर. सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू.